اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء رتحت والارض اذا سطحت والجبال اذا نصبت۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا ہے کہ میں نے آسمان کو وسیع کر دیا ہے اور زمین کو بھی وسیع کر دیا ہے اور پہاڑوں کو اس کے اوپر جو ہے وہ لگا دیا ہے۔ تو کل جو ہے وہ ورلڈ ہیلتھ ڈے تھا، اس کے بارے میں جو ہے تھوڑا سا ہم جانتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے انوائرمنٹ کرائسس کے بارے میں اور اس قسم کے جو ہے دیگر پرابلم ہمارے ادھر جو ہے وہ پیدا ہو رہے ہیں، اس کے بارے میں جاننے سے پہلے ہم جو ہے وہ ایک حکیم کا جو تذکرہ ہمیشہ کرتے ہیں، تو حکیموں کے تذکرے سے پہلے ہم تھوڑا سا جو ہے اس کا پیش لفظ بیان کرتے ہیں۔ عقل و دانائی کی حکمت سمجھ میں نہیں آئی، پیٹ میں درد حکیم صاحب آنکھوں کا سرما دیتے ہیں، سر درد ہے تو گناہ چھوڑنے کا مشورہ دیتے ہیں، دل کا دورہ میں گناہ سے توبہ کرنے کا کیا تعلق ہے، عقل اور رائے جو ہے وہ تسلیم کر لو، مال و دولت صحت راحت اللہ کے خزانہ میں ہے، صحت بھی ایک نعمت ہے جو اس کے قبضہ میں ہے، اور کوئی بندہ پریشان ہو تو وہی اس کو نجات دینے والا ہے، وہ واحد اللہ کی ذات ہے جو ہر قسم کی بیماری، ذہنی جسمانی روحانی بیماری کو دور کر کے زندگی اور صحت عطا کرتی ہے، رزق عطا کرتی ہے۔ کیا انسان نے کبھی سوچا ہے کہ یہ جو ہے کیوں ایسے ہوتا ہے؟ قلم میں استخار اگر پیدا ہو جائے تو انسان جو ہے وہ اپنی عقل سے زیادہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ میری ایک آج سے تقریباً 20 سال پہلے کی ایک کہانی لکھی ہوئی ہے، اینک والا جن کے بارے میں نے جو ہے وہ لکھی تھی۔ ایک جڑی بوٹی جو ہے جب ایک مطلب کہ بزرگ یا ایک شہزادہ جو ہے وہ لا کے دیتا ہے تو اس مریض کو جس پہ جو ہے وہ جادو وغیرہ یا اس طرح سے جن وغیرہ ہوتا ہے تو اس کو شفا ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی جو ہے وہ مدد کر دیتے ہیں۔ تو وہ بہت سے رسالوں میں چھپی اور اس کی بڑی اپریشیٹ ہوئی اس وقت۔ تو کوکو شہباز جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ اصل میں اللہ تعالیٰ خود ہی جو ہے وہ انسان کو جب تندرست کرنا ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی سبب پیدا کر دیتا ہے۔ ہم اکثر یہ کہتے ہیں اور آپ نے سنا بھی ہوگا کہ عقل بڑی کے بحث، پیر کامل کے یقین کامل، معالج یا حکیم کامل دوا، دوا دال واو الف والی اور دال اینڈ واو الف والی دوا کامل، حکیم یا معالج کامل، دعا یا دعا کامل۔ تو اس طریقہ سے آپ لوگ جو ہے یہ خود فیصلہ کریں کہ کون سی چیز کامل ہے، دوا کامل ہے یا دعا کامل ہے۔ تو آج ہم جو ہے ایک بڑے زبردست قسم کے حکیم کا ذکر کرتے ہیں جس کا نام انگریزی زبان میں گیلن اور اردو زبان میں اس کو جالینوس کہتے ہیں۔ میں آج بھی اس کی جوار جالینوس ہمیشہ استعمال کرتا ہوں، اعصابی طاقت کے لیے، پٹھوں کے درد کے لیے، گیس کے لیے، اور جتنے بھی پیٹ کے امراض ہیں ان کے لیے جوار جالینوس میں آج بھی استعمال کرتا ہوں، اور میری سب سے پسندیدہ دوائی ہے جوار جالینوس۔ تو اگر ہم دیکھیں کہ گھڑی ساز جو ہے وہ اپنے پرزوں کو جب تک جانتا نہیں اس وقت تک اس کو ٹھیک نہیں کر سکتا، یعنی کہ گھڑی کے پرزوں کو نہیں جانتا۔ اسی طریقہ سے حکیم جالینوس نے فرمایا کہ جب تک کوئی طبیب انسان کے اندرونی جسم کو نہیں جانتا، گھڑی کی ایک مثال دی ہے، اس وقت تک وہ اس کا جو ہے وہ علاج معالجہ کیسے کر سکتا ہے؟ تو اس نے سب سے پہلے جو ہے یہ ڈیڈ باڈی کا جو مطالعہ کیا، نظام دوران خون کو دیکھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ دیگر جسم کے اعضاء، پیٹ کے اعضاء، انتوں، پھیپھڑوں اور جگر اور دل کا جو ہے وہ معائنہ کرنے کے بعد دماغ کا معائنہ کیا۔ یہ پہلا شخص ہے
जिसने लाश की चीड़ फाड़ करके उसको देखा। अलाउ नहीं था, लेकिन ये पहाड़ी के पास गुजर रहा था, वहां एक लाश जिसको मिली। तो इस तरीका से इसने जो है ये सबसे पहले जो है ये अपना जो है वो हकीम जालूस से इसको जो है वो जाना, लाश का मुआयना किया अंदर से, और तमाम अज़ा का जो है वो तफसीली जो है वो जायजा लिया। तो इस तरह से फिक्र तिबी की बुनियाद, यानी कि मेडिकल जूरिस की बुनियाद बेसिकली तौर पर हकीम जालूस ने रखी। तो मेडिकल जूरिस की बुनियाद जो है वो हकीम जालूस की जो बड़ा जबरदस्त किस्म का जो है ये एक उनका कारनामा है। अंदरूनी निज़ाम का पता चलाया और तहकीकात को वसअत दी। ये पहला शख्स था जिसने एनाटॉमी फिजियोलॉजी को अलहदा किया। एनाटॉमी जो है वो आप सब जानते हैं, तशरीह जिसको कहते हैं नहीं, कि एनाटॉमी जो है अज़ा के बारे में इल्म, और फिजियोलॉजी वो कैसे काम कर रहे हैं अज़ा हमारे। तो इस तरीके से जो है ये इसलिए जो है वो मुनाफिल अज़ा की बुनियाद रखी, सबसे पहले फिजियोलॉजी की बुनियाद रखी। तो इस तरीके से इसने दिमाग, हराम मगज, असाब, जिगर, मैदा, गुर्दा, आंतों के बारे में जो है वो तशरीह की, और इसकी किताबें जो है अभी तक जो है ये जालूस की किताबें जो है ये लंदन की लाइब्रेरी में जो है मौजूद है। और तरीके तिब लंदन के अंदर जो है ये इसकी गैलन के नाम से जो है इसको जाना जाता है। तो ये अभी जो है ये इसकी जितने भी जो है ये रसाले जो है बहुत ज़्यादा रसाले हैं इसकी किताबें भी हैं, लेकिन सालों की सूरत में जो है ये 78 साले इसके, जिसमें जो है 9 साले एनाटॉमी के बारे में है, 17 साले जो है वो फिजियोलॉजी के बारे में यानी कि मुनाफिल अज़ा के बारे में, और 6 साले तशखीस के बारे में है, और 16 साले इसके इल्मुल इलाज के बारे में है, और 30 साले जो है अद्वियात पर मुबनी है। ये पहला शख्स था जिसने अद्वियात के बारे में जो है वो तफसीलन नोट जो है हमें दिया। तो मैं उस वक्त जो है उसकी शख्सियत को सलाम करता हूँ। तो उस वक्त उसका जहन जो है देखिए कितना बड़ा था, और कुछ उसने सबसे पहले हैरत की बात है उस दौर में क्रोमेटोग्राफी का तो जो है वो दौर ही नहीं था, तो उसने सबसे पहले क्रोमेटोग्राफी दरियाफ्त की। मतलब कि वो ज़हीर शख्स जालूस का जो है वो जहानत आप देखें कि क्रोमेटोग्राफी का बानी, उस वक्त उसका ये नाम नहीं था, तो वो हम किसी और नाम से जो है वो कहते, तो अल्लाह ताला ने जो है वो इंसान को आइंदा उठाते रहेंगे। तो इस तरीके से जो है लेबोरेटरी के अंदर इसने सबसे पहले जो ये वाला जो है तजुर्बात करके इंसानी जिस्म के अंदर जो है ये मुख्तलिफ जो है वो तजुर्बात करके उसने दवा का मजाज और मरीज का मजाज दोनों को जो है इक्वल किया। यानी कि जो है दवा का मजाज पहला जो दरियाफ्त है क्रोमेटोग्राफी की, ये जो है बेसिकली तौर पर हकीम जालूस की इजाज़त है। इसने दर्जाबंदी की अद्वियात की, इस अमराज की भी दर्जाबंदी की, दर्जा अव्वल, दर्जा दोयम, सोयम और तहारम। इसी तरीके से इसने जो है सबसे पहले जो है वो क्रोमेटोग्राफी के लिए, जिसमें जो उसने जो है वो दर्जाबंदी की, जो सबक चीजें थी उसको जो है पहले दर्जे में उसने आपको बताया कि आप पत्ते में क्लोरोफॉर्म होता है, जितने भी पौधे उसके पत्ते जो है उसमें क्लोरोफॉर्म होता है, उसको पहले दर्जा दिया, सफेद को दूसरा दर्जा दिया, या पीले को दूसरा दर्जा, सुर्ख को तीसरा दर्जा दिया, और इसके बाद जब काले रंग और भूरे रंग को जो उसने चौथे दर्जे की जो है वो अद्वियात करार दी, बजाज उसने 4 दर्जे जो है वो इस तरीका से उसने जो है वो पहले जो है वो रंगों के मुताबिक उसने सबसे पहले जो है ये पुराने जमाने में, उस जमाने में जो है कि वो जो है आज से तकरीबन जो है वो 2000 साल से भी ज्यादा उसका जो है वो अरसा हो चुका है जब उसने जो है वो बुनियाद रखी। तो उस वक्त ये क्रोमेटोग्राफी का पहला जो है ये जो है रंग और मिजाज का इसने जो है वो इस्तेमाल किया। तो इस तरीके से जो है ये ऐसा शख्स था जिसने जो है वो पौधों के रंग में तब्दीली कैसे आती है, और इसमें जो है पानी में हल करने के बाद, गर्म करने के बाद जो है वो पौधों की जो है वो जो प्लांट पिगमेंट होता है जिसको क्लोरोफॉर्म कहते हैं, इसमें जो है वो क्या होता है कि आमतौर पर जब इसमें एसिड डाला जाए तो वो काम नहीं करता। तो एसिड जो है वो क्लोरोफॉर्म का हरा रंग होता है बेसिकली तौर पर, जिसको जो है वो उसने उस जमाने में जब गर्म किया पानी को, उसको पहले सादा पानी में उसने जो है वो
किसी भी प्लांट को डाला, मेडिसिनल प्लांट को या दूसरे प्लांट को, हर प्लांट का मतलब उसमें वेजिटेबल प्लांट भी शामिल है, मेडिसिनल प्लांट भी, हर्बल प्लांट भी, और हर किस्म का प्लांट उसमें शामिल है। तो ये उसने जो है वो मतलब जो है उसको मजाज दरियाफ्त करने के लिए सबसे पहले उसने जो है वो, जब क्लोरोफार्म के अंदर जो है उसके अंदर मौजूद था, तो उसने जो है वो फाइटोफाइटीन, यानी कि फाइटोफाइटीन इसके अंदर एसिडिक तब्दीली जब आई, तो उसने सबसे पहले फाइटोफाइटीन जो उसको कहा कि फाइटोफाइटीन इसके अंदर मौजूद है। देखिए जी, कमाल है जी, उस जमाने में जो है कोई साइंस नहीं थी, कोई लेबोरेटरी नहीं थी, कोई ऐसी चीज नहीं थी, लेकिन जो है वो उस जमाने की बात जो है वो, उसने सबसे पहले ये चीज इजाद की। और साथ से क्लोरोफिल सब्ज रंग जो है वो ज्यादा हो जाता है। उसकी वजह उसने बताई कि जब हवा इसके अंदर से गुजरती है तो रंग जो है वो सुर्ख ज्यादा हो जाता है। तो उसने जो सुर्खी और जो है ये सब्ज रंग को मिला के जामनी रंग को जो है वो, ये मैंने जो है वो जामनी रंग जो है वो 3rd डिग्री में उसने जो है वो सुर्ख रंग और जामनी रंग दोनों जो है 3rd डिग्री के अंदर जो है वो शामिल है। तो इसके बाद इसने जो है ये कहा कि नीले रंग वाले जो है वो परिंदे का कलर जो है, यानी कि बहुत से पौधे जो है वो सुर्ख और सब्ज मिलाकर जो नीले रंग का जो है वो असरात उसमें पैदा करते हैं। और उसके बाद पौधों के अंदर पर्पल जामनी कलर को ही कहते हैं जी। तो ये पर्पल औरतें ज्यादा जानती कलर के मुतालिक, तो सॉरी मैम, इतना ज्यादा कलर के मुतालिक नहीं जानता, लेकिन मुझे इतना थोड़ा सा अंदाजा है कि पर्पल कलर भी जो है वो जामनी कलर ही होता है, या नीला और इस तरीके से कोई आसमानी कलर कह रहे हैं उसको पर्पल कलर जो है जी। तो मेरे दोस्त भी बेहतर जानते होंगे, और उनकी जो है वो, और जो मेरी बहनें जो है वो ज्यादा बेहतर जानते हो पर्पल कलर जिसको कहते हैं। तो पौधों को जो है वो इस तरीके से उसने जो है वो मजीद जो है वो तरतीब जो है वो दिया। इस तरीके से जो है उसने जो है वो जहरीले पौधे, यानी कि सुर्ख रंग वाले जो पौधे थे, पॉइजनिंग प्लांट को भी उसने अलग कर दिया। वो पहला शख्स है जिसने जो है वो पॉइजनिंग प्लांट को अलग किया। पहले तो हम जो है ये मतलब कि अब देखिए आम आए हुए हैं, खट्टे आम जो है वो, उसमें जो है वो थोड़ा सा पॉइजन है, इतना ज्यादा पॉइजन नहीं है, हम बड़े शौक से खाते, गला हमारा पीछे खराब हो जाए, आम शुरू हो रहे हैं। तो इसके जो है वो उसने जो है दरियाफ्त किया कि इसके अंदर जो है वो एंथोसाइनिन और पिगमेंट जो होता है जो सुर्ख रंग का है, एंथोसाइनिन उसने जो है वो मतलब कि जहर जो है वो दरियाफ्त किया उस दौर के अंदर। तो ये बड़ी जबरदस्त किस्म की जो है वो दरियाफ्त है उसकी, उस दौर में जो है वो। इसी तरीके से पौधों के अंदर उसने जो है वो थायमीन उस दौर के अंदर, कैल्शियम, विटामिन ए कैल्शियम, और विटामिन ए जो उसने कहा कि ये जितने भी प्लांट्स हैं इनके जो बेसिक बीज है उनके अंदर विटामिन ए और बी जो है वो पाया जाता है, मतलब ये विटामिन ए और ई पाया जाता है। और उसमें जो जितने भी सिट्रिक एसिड जो है, यानी कि खट्टे प्लांट जो है उसमें जो है ये नींबू वगैरह और ये जितने भी प्लांट है, ये जो है वो पॉइजनिंग नहीं है, बल्कि इसके अंदर सिट्रिक एसिड पाया जाता है। तो पौधों में जो है वो आलू का जो है वो उसने जबरदस्त, ये काम उसका भी जबरदस्त है कि मैं अक्सर जब भी हम जो है वो आलू से जो है शुगर निकालते थे अपने जब स्टूडेंट दौर में, तो उसमें जो है वो हम देखते थे सफेद रंग उसको पीला रंग हो जाता था। आलू जब हम काट के रख देते हैं ना तो उसका पीला रंग हो जाता है। तो उसने सबसे पहले ये जो है दरियाफ्त किया। मैं उसकी जो दरियाफ्त जो है वो उसकी इजादात और उसकी जो है वो यानी कि उसकी थ्योरी जो है वो देख के हैरान हुआ जब मैंने इसको पढ़ा। तो उसने सबसे पहले जो है वो फिनोटिनोल जो है, यानी कि जो है उस दौर के अंदर जो है ये दरियाफ्त किया कि ये रंग जो है वो सफेद रंग जो है वो पीले में कैसे तब्दील होता है। तो ये उसके अंदर जो है वो फिनोटिनोल होता है जो कि अपने कलर को जो है वो तब्दील कर देता है, हवा लगने से वो नया केमिकल बन जाता है, उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है, तो वो सफेद रंग जो है वो पीले कलर में चले जाता है। मतलब उस दौर में उसने इसको काटा जब, और उसके बाद उसने जो है ये उसके अंदर जो है ये केमिकल देखा। तो इसके बाद जो है ये और भी बहुत से जो उसने जो है वो काम किए। तो उसके बाद जो है ये पीला रंग जो है ये इसके बाद जो है ये जेनो जेंथोफिनाइल की वजह से होता है, या कि अभी जो दरियाफ्त हुआ है नया जो है ये
اور کولیٹار کی وجہ سے ہوتا ہے، اور جس کو جو ہے وہ لیکوپین پگمنٹ بھی کہتے ہیں۔ تو اس طریقے سے جو ہے اس نے یہ تری چیزیں جو دریافت کی، اور بہت سے جو ہے پودوں کو اس نے جو ہے وہ درجہ بندی کر کے جو ہے فرسٹ گریڈ، سیکنڈ گریڈ، تھرڈ گریڈ اور فورتھ گریڈ کے اندر اس کے وجوہات کو بتایا۔ اسی طریقے سے ٹینل بھی اس نے دریافت کیے کہ پودوں کے اندر جو اسٹوڈنٹ پراپرٹی جو ہے وہ، اور ٹینل اس نے کہا کہ یہ احساس ہوتے ہیں بیسیکلی طور پر، ان کا رنگ جو ہے وہ تبدیل ہو کر جو ہے یہ بیسیکلی طور پر یہ تکسیدی عمل سے تبدیل ہوتا ہے، یعنی کہ آکسیڈیشن جب ٹینل کی آکسیڈیشن ہوتی ہے تو یہ والا جو ہے یہ تبدیل ہو کر اس کا مزاج تبدیل ہو جاتا ہے، اور ٹینل جو ہے سرخ رنگ جو ہے وہ دیتا ہے، جیسے فینول جو ہے یہ کام کرتے ہیں۔ اس وقت فینول کا اس نے نام نہیں دیا، اور ٹینل کا جو ہے اس کو جو ہے یہ اس نے دریافت کیا، اور جو ہے یہ ٹینل کے بعد جو ہے یہ فلاوینول، آپ سب جانتے ہو گے فلاوینول کا آج کا ڈاکٹر بشیر جو ہے یہ بڑا چرچا ہے ڈاکٹر بشیر صاحب کا جو ہے، جنہوں نے فلاوینول جو ہے وہ دریافت کیے پودوں کے جو کلر جتنے بھی ہوتے ہیں یہ وہ ڈاکٹر بشیر جو ہے یہ بہادر یونیورسٹی کے جو ہے یہ بڑے فائٹوکیمسٹری کے جو ہے بڑے ماہر ہیں، اور جو ہے فارماکوگنوسی کے جو بڑے ان کا نام ہے، اور فینول کے اوپر ان کا بہت زیادہ کام ہے۔ تو اس طریقے سے اس زمانے میں فینول بھی جو ہے یہ بیسیکلی طور پر جب ابھی جو ہے یہ دریافت ہوئی ہے، تو اس دور میں جو ہے گیلن یا جالینوس نے جو ہے اس کی ابتدا کی تھی۔ تو ابھی ہم تھوڑا سا جو ہے یہ آخر میں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں جی ارتھ ڈے کے بارے میں۔ ارتھ ڈے جو ہے 4 مئی کو کہتے ہیں جی، کیونکہ ہمارا جو ہے ارتھ کے ساتھ جو ہے وہ بڑا تعلق ہے، اور ہمارا جو ہے جتنے بھی تعلق کیسے ہے کہ ہم پلانٹس کی جو ہے جتنے بھی فائٹو پلانٹس ہیں، اربن ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں، جو ہماری پریکٹس میں آتی ہیں، تو وہ سارا جو ہے اس کا تعلق ارتھ سے ہے۔ ہم ارتھ کے رہنے والے جانور نہیں ہیں، بلکہ انسان ہے زمین کے رہنے والے، اس لیے ہمارا تعلق جو ہے یہ خاص طور پر یہ جو ہے یہ ہمارے زمین کے ساتھ ایک تعلق ہے بڑا زبردست قسم کا، جس میں جو ہے وہ ہمارے جس ماحول میں ہم رہتے ہیں اس کو جو ہے وہ انوائرمنٹ کہتے ہیں۔ تو جیسے کہ میں نے شروع میں بات کی کہ ہمیں جو ہے یہ سمجھ نہیں آتی کہ حکیم صاحب جب پیٹ درد ہوتا تو اس کو جو ہے اس وقت ہم بچے تھے تو جب ہم نے یہ کہانی پڑھی تھی کہ جب پیٹ درد رہتا تو حکیم صاحب اس کو سرما دیتے ہیں بغائے اس کے کہ وہ جو ہے وہ پیٹ درد کی دوائی دیں۔ تو اس وقت میں نے جو سوال کیا جب ہم نے ٹیچر سے، تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو بھئی ٹھیک بات نہیں ہے کہ آپ جو ہے تمہیں پیٹ درد ہو رہا ہے اس کو سرما دے رہے ہیں۔ تو حکیم صاحب کی حکمت اس میں جب مجھے اب سمجھ آئی ہے کہ حکیم صاحب کی حکمت یہ تھی کہ اس وقت اگر اس کی آنکھیں ٹھیک ہوتی تو یہ آنکھوں کو سے اگر کھاتا تو یہ جو ہے روٹی کو سڑی ہوئی روٹی نہ کھاتا، یعنی کہ اچھی غذا کھاتا جس کی وجہ سے یہ پرابلم جو ہے اس کو نہ فیس ہوتی، پیٹ کی درد نہ ہوتی۔ تو آئندہ سے جو ہے وہ پیٹ درد کے لیے بیسیکلی طور پر یہ جو ہے وہ ایسی روٹی جو ہے وہ استعمال نہ کرے، ایسا پانی استعمال نہ کرے، اس لیے اس کو جو آنکھوں کی بینائی کی بہتری کی ضرورت ہے۔ تو حکیم تو یہاں تک جو ہے یہ ایک رسائی جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے جو ہے یہ بہت زیادہ جو جس میں ماحولیاتی کرائسس، میرے پاس ایک بک ہے جس میں جو ہے وہ انوائرمنٹل کرائسس کے بارے میں جو ہے یہ بتایا گیا ہے کہ ہمارا نیکسٹ ٹائم جو ہے سونامی کا آنے والا ہے، جس میں جو ہے بیسیکلی طور پر اگر ہم نے اپنے آپ کو کور نہ کیا تو ہمارے جسم یہاں پہ جو ہے وہ گرین ہیون پریس کی چھپی ہوئی کتاب ہے، اس کو جو ہے جو کہتے ہیں جی انوائرمنٹل کرائسس جو ہے اپوزنگ ویو پوائنٹ ہے اس کے اندر جو موجود ہے۔ تو یہ بیسیکلی طور پر اس نے جو بہت زیادہ اس کے اندر بڑی زبردست قسم کی باتیں لکھی ہوئی ہیں، تو جو ٹائم کی کمی کی وجہ سے میں آپ کو جو ہے پوری نہیں بتا سکتا، لیکن بس یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے یہ کہ ہمارے جتنے بھی انوائرمنٹ ہے بیسیکلی طور پر ہمارا ماحول جو ہے یہ خرابی کی طرف جا رہا ہے، آلودگی کی طرف جا رہا ہے۔ تو اگر آپ نے اس کو کنٹرول نہ کیا تو بہت زیادہ امراض ہماری جو ہے یہ، جیسے کہ ابھی ڈاکٹر صاحب پہلے بتا رہے تھے ہمیں جو ہے نئی جو ہے وہ وائرسز کا سامنا آ رہا ہے، اور اسی طریقے سے ہمارا جو ہے یہ جتنے بھی ماحول ہمارا جو ہے جب خراب ہو رہا ہے، تو انوائرمنٹ جب خراب ہو رہا ہے تو اس میں جو ہے بڑی پرابلم ہمیں جو ہے وہ فیس ہو سکتی ہے۔ نیکسٹ ٹائم جو ہے یہ بہت زیادہ جو ہے ہمیں آلودگی کا شکار جو ہے ہو سکتے ہیں۔
हमारी जो आलूदगी जो है ये हमारे मौसम के अंदर तब्दीलियों का बायस भी बना सकती है हमें जो है ये। और ये देखिए ना अभी मई का महीना जा रहा है और हम जो है मई के जो है 5-6 मई को शदीद गर्मी होती थी किसी जमाने में, और रोज जो है अब बारिश हो रही है। तो ये जो है क्या हमारे लिए जो है ये सुनामी नहीं तो अजाब नहीं तो और क्या, कि इस वक्त जो है मौसम के अंदर जो है वो हम फसलें काट रहे हैं, हमारी जो है ये हमारी कोताहियां जो है सारी हमारे सामने जो है वो आ रही है। तो इसलिए हमें जो है क्या करना चाहिए, हमें जो है इससे जो है वो माहौलियाती आलूदगी से बचना चाहिए, हमें अपने माहौल को साफ सुथरा रखना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने माहौल को ज्यादा से ज्यादा जो है वो बेहतर कर सके। और जो है वो एनवायरमेंटल क्राइसिस के अंदर जितने भी मतलब जो है ये भी जो जितने भी हमारे आ रहे हैं जिसमें जो है वो अल्टरनेटिव फ्यूल कैन रिड्यूस एयर पोल्यूशन। पोल्यूशन का मतलब ये है कि जितने भी जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा जो है पोल्यूशन जो है हमारे अंदर जो है वो मौजूद है, यानी कि गंदगी जिसका आलूदगी, ये सारे पॉल्यूशन है। तो ये पॉल्यूशन असल में क्या कर रही है, ये जो है ऊपर को जा रही है, हमारे जो है माहौल को भी खराब कर रही है। और इसी तरीके से हमारे जितने भी देखिए सबसे बेहतर माहौल हमारा कैसे बेहतर हो सकता था, ये दरख्तों को हमें क्या फायदे, इतने ज्यादा फायदे हैं। हम जब बचपन में पढ़ते थे 5वीं जमात में या 8वीं जमात में सवाल जो है वो जंगलात के फायदे हमें जो है वो अक्सर आया करता था। तो हमें दरख्तों को इतने ज्यादा फायदा, उससे हमें जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो फायदा हासिल हो रहे हैं। तो इसलिए हमें जो है ये इनके जो फायदे से मुकम्मल जो है वो फायदा हासिल करना चाहिए, यानी कि जो है। लेकिन एक बात मुझे बड़ा जो है यहाँ पे मैं अपने भाइयों से और दोस्तों से जो है ये थोड़ा सा और डॉक्टर मोहम्मद अकरम साहब की वसासत से ये बात करना चाहता हूँ कि मेरे पास हॉर्टिकल्चर के ये हमारे पास जो है वो PHA जो है जिसको जो है वो पंजाब हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी जो है ये बनाई गई है। यहाँ पे जो है मेरे पास बहुत से जो है यहाँ के जो है वो वर्कर आते हैं मेरे पास, तो वो बताते हैं कि हॉर्टिकल्चर ये असल में हमारे मेडिसिनल प्लांट जो है ना ये बहुत ही मतलब जो है वो बहुत ही मुफीद है। और हमारे पूरे पंजाब पूरी दुनिया में जो है आपको खासतौर पाकिस्तान के अंदर बड़ा मुफीद है। तो हमें जो है वो डेकोरेशन के लिए यानी हार्टिकल्चर जितने भी जो है वो बहुत कम लोग जो है ये हार्टिकल्चर के माहिर है, वो जो है वो सिर्फ डेकोरेशन के माहिर है। मतलब वो असल में हार्टिकल्चर जो है वो शोभा जो है वो डेकोरेशन हमारे जितने भी जो बागात हैं जो बगीचे हैं और जितनी भी चीजें जो है ये इनके अंदर जो है वो डेकोरेशन का काम करते हैं। हालांकि अगर उनको हुक्मा को इसमें शामिल किया जाए तो हुक्मा जो है मेडिसिनल प्लांट को बेहतर जानते हैं, तो हम मेडिसिनल प्लांट अगर वो लगा दें, देखिए तो 1 करोड़ का बजट आया जो कि घंटा घर के इर्द गिर्द उसके डेकोर के लिए जो है वो PHO को मिला है। तो उन्होंने जो है क्या किया, इम्पोर्टेड जितने भी प्लांट्स थे वो ला के उसकी डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल किए। अब वहां पे क्या फूल तो हो जाएंगे, लेकिन फूल हमारे जो है वो फूल किस काम आएंगे, उसमें जो है वो हर्बल ऐसे प्लांट जिनके अंदर हर्बल मेडिसिन की अफादियत हो। वो एक तो सायादार होते हैं बड़े जबरदस्त किस्म के, हमें साया की भी जरूरत होती है, वहां पे जो मजदूर वगैरह सारा दिन बैठे रहते हैं, अगर वो सायादार दरख्त वहां पे लग जाते हैं डेकोरेशन तो उनसे भी हो जाती। और साथ जो है वहां पे जो है ये हर्बल मेडिसिन जितनी भी जो हम बाहर से जो हमारे जो है ऊपर बड़ा बोझ है, हम वहां पे ये चीजें लगाई जाए तो उससे जो है हमें जो हमारा माहौल भी बेहतर हो जाएगा, हमारे शेल्टर भी मिल जाएगा मजदूरों को, और इस तरीके से डेकोरेशन भी हो जाएगी। तो इस तरीके से चारों चीजों को मतलब कि जो है हमें चारों चीजों को मद्देनजर सिर्फ डेकोरेशन को ही मद्देनजर रखते हुए 1 करोड़ को जो है हमारा मुल्क जो इतना अमीर तो नहीं है, तो सिर्फ एक डेकोरेशन को जो है वो मद्देनजर रख के मैं इंतजामिया से अपने जो है डॉक्टर साहब की रफाकत से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे जो है ये जितने भी जो है ये हर्बल मेडिसिन के माहिर है उनको जो है ये हार्टिकल्चर के अंदर जो है ये मौका दिया जाए, और PHA में उनको जो है वो मौका दिया जाए कि वो जो है वो अपने जो है वो मेडिसिनल प्लांट को जो है ये आपके जो है वो लोगों को बताएं कि हम जो है मेडिसिनल प्लांट जो है ये बागात में जितने भी हर्बल गार्डन है आपके इर्द गिर्द जो है उसमें लगा के उसका माहौल भी बेहतर कर सकते हैं, और जो है वो हजारों रुपया जो है वो गवर्नमेंट का बचा सकते हैं हम, अगर हम ये हर्बल मेडिसिन जो है ये यहाँ पे आपने तैयार कर लें। और हमारे इतने प्यारे प्यारे गुड़गुड़ है, तो मेरे घर के बाहर बहुत ज्यादा प्लांट लगे हुए डॉक्टर साहब जानते हैं,
तो मैंने खुद वो लगवाए हुए हैं, मेरे घर के पीछे भी बहुत ज्यादा प्लांट लगे हुए हैं। तो वो जो है ये मतलब केला है, किसी और बहुत से वो जो है वो सायादार है। मतलब सबसे बड़ा जो है वो मेरे जो है वो है। तो उसके गोले वगैरह जो है और इस तरीके के पत्ते वगैरह मैं अद्वियाती तौर पर इस्तेमाल करता हूँ। श्री का पौधा भी मेरे घर के सामने लगा हुआ है, और बहुत से पौधे जो है जो मेडिसिनल प्लांट बेसिकली तौर पे हैं, उनका मेडिसिनली तौर पे मैं लेता हूँ, और ये बेनिफिट भी उनसे जो है वो हासिल करता हूँ, डेकोरेशन भी उनसे होती है और माहौल भी साफ होता है। ये सारे जो है ये मैं उनसे फायदे लेता हूँ। तो इसलिए मेरा जो है तमाम आखिर में जो है मेरा पैगाम है आखिर में आज के जो टॉपिक डॉक्टर साहब के हवाले से, कि मेहरबानी फरमाकर हमारे हुक्मा को जो जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो मेडिसिनल प्लांट के बारे में, हर्बल मेडिसिन के बारे में जानते हैं, उनको भी जो है वो इस फील्ड में मौका दे जाए हॉर्टिकल्चर के अंदर, ताकि जो है वो इसमें जो है वो बेहतरी ला सके, हमारे माहौल में भी बेहतरी ला सके, और हमारे जो है ये कीमती सरमाया को बचा सके, जो कि मतलब कि अब मतलब लेकिन डेकोरेशन भी होगी हमारे प्लांट जो है वो, जितने भी मेडिसिनल प्लांट है वो गुड़गुड़ा है, उसमें सुर्ख रंग के फूल इतने प्यारे लगते हैं, और इसी तरह से अनार का दरख्त है, और उसमें जो है वो सुर्ख रंग के फूल इतने प्यारे लगते हैं। आप जो है वो लगवा के तो देखें, इस तरह से बहुत से हमारे जो प्लांट यहाँ पे हो रहे हैं, उनसे आप जो है वो अद्वियात भी तैयार कर सकते हैं, आप फ्रूट भी हासिल कर सकते हैं, और जो है ये फ्रूट के साथ साथ जो है वो अद्वियात की जो है वो बहुत से हमारे जो दोस्त है बाहर से जो दवाइयाँ मंगा रहे हैं, वो हमारे मुल्क के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा अद्वियात जो है वो तैयार हो सकती है, और इनसे हम बहुत ज्यादा फायदा हासिल कर सकते हैं। और हमें जो है वो हकीमों को जो है खास तौर पर जितने भी हकीम है हमारे, उनको ये मौका देना चाहिए हॉर्टिकल्चर के अंदर, कि उनको भी एक कम से कम दो टीम चार टीम जो रखी, के बारे में जो है वो कल्चर को, या PHA जो है पंजाब हेल्थ हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी जो है उसको जो आगाह करे, और वो बागे जना है, और इसके इर्द गिर्द जितने भी उनके अंडर कंट्रोल हमारी जो है जितने भी ग्राउंड है, और जो है वो प्ले ग्राउंड है, उनके इर्द गिर्द जितने भी जो बहुत ज्यादा जगह खाली है, हमारे हॉस्पिटल की बिल्कुल बैक साइड पे जो है ये प्ले ग्राउंड है, उसके अंदर जो है वहाँ पे बहुत ज्यादा DHO के पीछे वहाँ बहुत ज्यादा जो है वो चांसेस है जो है ग्राउंड के अंदर गलत ग्राउंड है, तो वहाँ पे चांसेस है कि हम जो है मेडिसिनल प्लांट जो है लगाएं। जिस यूनिवर्सिटी के अंदर जो है बहुत ज्यादा मेडिसिनल प्लांट लगाने के चांसेस है। हमारे एक दोस्त ने कोशिश की थी, वो VC साहब से मिले थे कि हम मेडिसिनल प्लांट जो है यहाँ पे लगाएं, लेकिन वो प्रोजेक्ट जो है वो थोड़ा सा डॉक्टर साहब को पता है कि थोड़ा सा बैकग्राउंड में चला गया, तो मैं बहुत मशहूर हूँ डॉक्टर साहब का, तो इस तरीके से हमारे इर्द गिर्द जो है वो जितना माहौल है उसको हम जो है वो अपने मेडिसिनल प्लांट से बेहतर करके ज्यादा से ज्यादा फायदा हम हासिल कर सकते हैं। तो मैं बहुत मशहूर हूँ डॉक्टर मोहम्मद अकरम साहब का, अपने भाइयों का और अपने जो है वो दोस्तों का। बहुत शुक्रिया सर।